आज से हम कंप्लीट ट्रेडिंग सीखेंगे by using candlestick pattern, by using price action, by using flow charts, by using curves, by using mathematical terms, by using different types of indicator which is used in understanding the moments of charts, means recognizing the trends, upward trend, downward trend, market bullish, bearish, so everything we will learn. And for that, if somebody wants to learn, means अगर आपको trading सीखना है, तो there is only two way. The first one is you can learn from your real experience, which I never prefer for starters or what we say for beginners. That is not suitable for you. So what you need to learn, you need to understand the basic terminology which is used in trading, and which I'm going to teach you by using some books, by using some videos. So I think we need to start. So price action trading, हम बात करेंगे कि ट्रेडिंग को ऑन बिहाफ ऑफ प्राइस एक्शन हम कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, हम कैसे सीख सकते हैं, या फिर प्राइस एक्शन के थ्रू ट्रेडिंग कैसे किया जाता है. ओके, तो आज हम कंप्लीटली प्राइस एक्शन के बारे में बात करेंगे. ओके, सो दिस इज मी, शिव कुमार यादव, founder of Trade with Mathematician, stock market analysis. Okay, and I'm also a mechanical engineer, and I call myself to be the mathematician because I had already taken mathematics as optional in UPSC. So I think you are capable to understand the level of my brain what I have. So this is just to introduce myself कि भाई बंदे के पास बहुत पोटेंशियल है, समझ में. I had already finished mathematics optional in UPSC, so I think you are capable to understand the level of brain what I am. So this is something just to introduce myself. And as for my profession, I'm just teacher, and currently I'm going to teach you the stock market by using some videos, by using price action. Okay, देखते हैं प्राइस एक्शन ट्रेडिंग एक्चुअली में होता क्या. ओके, सो a simple stock market trading which is applicable for the intraday, swing trading and positional trading. तो आप प्राइस एक्शन के थ्रू तीन चीजें आप एग्जीक्यूट कर सकते हो. पहला, सर अगर आपको इंट्राडे करना है, आपको स्विंग ट्रेडिंग करना है, या फिर आपको पोजिशनल ट्रेडिंग करना है, और मैं मोस्टली प्रीफर करता हूँ स्कैल्पिंग इन option trading. This is my preference, what I used to do. And I think जिसको scalping आ गया, he had something like excellent mindset just to execute trade within 5 minutes, within 2 minutes, within 3 minutes, and get profit and get out of the market. That's what a simple fundamental. Before entering into the market, you need to understand, analyze all the parameters by indicators, by price action, by candlestick movements, by candle formation. But once you enter, within 2 or 3 minutes, you have to execute your trade, and after booking the profit, you must have to be out of it. This is the simple fundamental which is used by any scalper. And I personally used to do the same thing in option trading. Mostly I used to buy put and call, used to do trading. Okay, so price action trading के बारे में बात करने का. Okay, so अच्छा, बुक को लाइन पर लाइन नहीं पढ़ते, जो हमें काम की चीजें वही पढ़ेंगे. अगर हमें काम की चीजें फिगर के थ्रू अंडरस्टैंड होता है, सो आई कैन अंडरस्टैंड बाय यूजिंग फीचर. व्हाई आई हैव टू रीड लाइन बाय लाइन? भाई हमें लाइन बाय लाइन 6 क्लास के बच्चे की तरह पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं. ओके, सो हमें फिगर के थ्रू समझना है, हमें कैंडलस्टिक पैटर्न के थ्रू समझना है, हमें इंडिकेटर्स के थ्रू समझना है, हमें प्राइस एक्शन के थ्रू समझना है. सो इफ यू वांट टू डू ट्रेडिंग, आपको इन सारी चीजों में मास्टर्ड करना होगा. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. डिस्क्लेमर हमें नहीं चाहिए सर. अच्छा, क्या क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले तो सर क्या क्या पढ़ने वाले हैं? देखो, पहला टेक्निकल इंडिकेटर. सर कौन कौन से टेक्निकल इंडिकेटर यूज होते हैं. उसके बाद प्राइस एक्शन क्या होता है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे प्राइस एक्शन का. उसके बाद
सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो देखो मैक्सिमम टाइम आपको अपना ट्रेड को किसी एक चीज पे एग्जीक्यूट करना होगा, या तो आप सपोर्ट रेजिस्टेंस के थ्रू ट्रेड करो, या तो आप कैंडलस्टिक पैटर्न पे ट्रेड करो, या तो आप प्राइस एक्शन पे ट्रेड करो, या तो आप इंडिकेटर्स यूज करके ट्रेड करो। मीन्स यू हैव टू एग्जीक्यूट योर ट्रेड ऑन एग्जीक्यूशन ऑन मीन्स आप कह सकते हो बाय मास्टरिंग द सिंगल थिंग्स। मीन्स आपको या तो प्राइस एक्शन का मास्टरी करना होगा, या तो आपको कैंडलस्टिक पैटर्न कंप्लीटली आना चाहिए। मतलब इन सारी चीजों को कॉम्बिनेशन में आपको ट्रेडिंग नहीं करना है, आपको ट्रेडिंग किसी एक पार्टिकुलर चीज पे करना है। जैसे मैं पर्सनली करता हूँ, कभी कभी कैंडल पैटर्न को रीड करके करता हूँ, और सम ऑफ द टाइम आई यूज इंडिकेटर्स व्हिच गिव्स सम प्री एजम्पशन कि दो कर्व हैं, वो दो कर्व कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जैसे ये दो कर्व हैं, तो सर ये दो जो कर्व जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, उस पॉइंट से कैंडलस्टिक का मूवमेंट कैसा हो रहा है, या तो वो बुलिश से हो रहा है या तो वो बेरिश हो रहा है। सो इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व। ओके, तो मैं ऐसे ट्रेड करता हूँ कभी कभी। अच्छा, कभी कभी क्या करता हूँ कि सर कैंडल के फॉर्मेशन पे, जैसे सडनली अगर किसी एक पॉइंट पे डोजी फॉर्म हो रहा है या फिर इन्वर्टेड हैमर फॉर्म हो रहा है, उस पॉइंट से कर्व अपवर्ड मूवमेंट करेगा या डाउनवर्ड मूवमेंट, इस चीज को प्रेडिक्ट करते हैं। मैं स्कैल्पिंग करता हूँ, और स्कैल्पिंग आई थिंक यूज्ड टू डू और एन अ वेरी स्मार्ट वे। एंड सबसे मेन इंपॉर्टेंट है इसमें कि हाउ हैबिचुअल यू आर विथ चार्ट। सर आपने चार्ट पे कितना समय दिया है। आप प्राइस एक्शन को सीख जाइए, आप कैंडल पैटर्न को सीख जाइए, आप इंडिकेटर को सीख जाइए, बट इफ यू रियली वांट टू मास्टर ट्रेडिंग, आपको चार्ट को रीड करना आना चाहिए, वो भी 100%, नो इफ नो बट। सो आपको चार्ट अंडरस्टैंडिंग कंप्लीटली आना चाहिए। किसी भी तरीके से आप ट्रेड कर लीजिए, लेकिन ये चीजें आपको आनी चाहिए। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। हाउ टू मेक मनी विदाउट ब्रेकआउट ट्रेडिंग। देखिए हम क्या करते हैं, जब भी ट्रेडिंग करते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस होता है, हमारा टारगेट होता है, और एक पॉइंट पे हम ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। तो मोस्टली जो मतलब जिन्हें सारी चीजें नहीं आती, वो क्या करते हैं कि स्टॉप लॉस लगा देते हैं विदाउट कैलकुलेटिंग। तो सबसे पहले उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, उसके बाद उनका पैसा लॉस हो जाएगा। मीन्स टारगेट हिट होने से पहले क्या हो जाएगा, आपका टारगेट हिट होने से पहले आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, तो आपका पैसा क्या होगा, डूब जाएगा। सो द थिंग्स इज इम्पोर्टेंट कि आपको सारी चीजें सीखनी है। मीन्स मैं पर्सनली फोकस करता हूँ कि आप पहले सीखिए, समझ में। अच्छा, स्टॉप लॉस किस पॉइंट पे लगाना है, कितने पॉइंट्स का इंक्रीजमेंट पे आपको टारगेट सेट करना है, कितने पॉइंट्स के डिक्रीजमेंट पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है, ये सारी चीजें आपको सीखनी होगी। अच्छा, आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या है। मैं पर्सनली ट्रेड करता हूँ ऑन 1:3। ओके, तो ये सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे, और आई होप कि अगर आप इस वीडियो को कम्प्लीटली देखते हो और जो मैं वीडियो ला रहा हूँ, अगर आपने उसको वॉच किया, तो आपको ज़्यादा ब्रेन नहीं लगाना है ट्रेडिंग करने के लिए। दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस कि सर ट्रेडिंग के लिए ज़्यादा ब्रेन नहीं चाहिए, ज़्यादा चीज़ें चाहिए कि आपके पास एक अंडरस्टैंडेबल ब्रेन हो कि हाँ मैं चीज़ों को देख के समझ पाता हूँ कि सर कैंडल पैटर्न ऐसे फॉर्म हो, यहाँ डोजी फॉर्म हो, यहाँ से कैंडल का मूवमेंट चेंज हो गया, या फिर रिवर्सल हो गया, या फिर बुलिश फॉर्म हो गया। दिस इज समथिंग व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड बाय यूजिंग द कैंडलस्टिक पैटर्न। और ये आप तभी कर पाओगे जब आपको हर एक चीज की अंडरस्टैंडिंग होगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सो आपको टेक्निकल इंडिकेटर्स क्यों जरूरी है। देखिए इतना हम पैराग्राफ ये सब नहीं पढ़ेंगे, हम सिंपल सा बात पढ़ेंगे कि सर देखिए हम आपको ग्राफ के थ्रू बता रहे हैं, सर ये कैंडल ऐसे 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 मूवमेंट करते हैं। ओके, इस पॉइंट से सडनली जंप हो। ओके, सर ये कैंडल ऐसे डाउनवर्ड थी, फिर अपवर्ड डाउनवर्ड अपवर्ड डाउनवर्ड अप डाउन अप डाउन अप। सडनली इस जोन को जैसे ही इस कैंडल ने इस पॉइंट पे क्या किया, ब्रेक किया, वैसे एक अपवर्ड जंप आया। मीन्स इसने बुलिश मार्केट को शो किया। मीन्स इस पॉइंट पे क्या हो रहा होगा कि सभी लोग बाई कर रहे हैं। अब इसको सीखने के लिए क्या आपको ब्रेन लगाना, मुझे नहीं लगता आपको ब्रेन यूज करना, क्योंकि मैं
रीड कर सकता हूँ ना सर, मैं पहले से देख सकता हूँ। देखिए कैसा, मैं पहले रीड कर सकता हूँ कि सर इस पॉइंट पे ये ऐसे 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 कुछ मोमेंट्स हो रहा था, मतलब ये हमारा एक साइडवेज जोन था। कौन सा जोन था? साइडवेज, मतलब अप डाउन मूवमेंट हो रहा था। इस पॉइंट पे जैसे ही कैंडल ने ब्रेक किया मुझे पता चल गया ये बुलिश मार्केट। समझ में आया? मुझे क्या पता चल गया कि सर ये बुलिश मार्केट। ये कैसे पता चला? ये जो मेरा जोन था, इस जोन को यहाँ पे कैंडल ने ब्रेक किया। आपको चार्ट को देखना आना चाहिए कि सर ये जोन था, इस जोन के बाद इस जोन को जैसे ही कैंडल ने ब्रेक किया उसके बाद अपवर्ड मोमेंट आ गया। अब बताइए इसमें आपको ब्रेन लगाना? नहीं सर, मैं चार्ट को देख के ऑब्जर्व कर सकता हूँ। अच्छा चलिए, ये तो हम बेसिक चीजें बात कर रहे हैं कि आप ऑब्जर्व करके बता सकते हो। और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे इंडिकेटर्स डज नॉट डिक्टेट प्राइस। देखिए जब कभी भी इंडिकेटर हर समय प्राइस को डिक्टेट नहीं करते। इंडिकेटर इन द सेंस कि सर आपने एक इंडिकेटर यूज किया और आपको लग रहा है कि इस पॉइंट पे दो इंडिकेटर्स का इंटरसेक्शन हो रहा है, मीन्स दो कर्व का इंटरसेक्शन हो रहा है। क्या इस पॉइंट से मार्केट बुलिश होगा या बेरिश होगा? दिस इज नॉट 110% फिक्स और 110% प्रेडिक्टेबल। उसके बाद हम किसी और इंडिकेटर्स का यूज करके क्या करेंगे? प्रेडिक्ट करेंगे कि देखें हमने एक इंडिकेटर से कंफर्मेशन ली, अब इसका एश्योरिटी हम किसी और से लेंगे। सो यू मस्ट हैव टू मास्टर 2 और 3 थिंग। जैसे सर कि हम ऑब्जर्व करते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, RSI को यूज करके ये प्रेडिक्ट करने की कोशिश करें। सर चार्ट ऐसे मूव कर रहा था, ऐसे मूव कर रहा था, ऐसे मूव कर रहा था। इस जोन में क्या हो रहा है कि जो बुलिश मार्केट है या फिर जो बाई करने वाले हैं उतने ही सेल करने वाले हैं। तो जो कैंडल की बॉडी है वो बहुत ही छोटी फॉर्म हो रही है एट मिडिल इन द सेंस कि सर ये ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। ओके, तो मैं क्या कहूँगा कि सर इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, इस जोन में क्या हो रहा है, इस जोन में जो बुलिश है या फिर जो बाई करने वाले हैं और जो सेल करने वाले हैं उनकी दोनों का इंटेंशन, अमाउंट, जो भी वो अमाउंट मार्केट में एंटर कर रहे हैं वो दोनों सेम है। मींस इस पॉइंट पे ना ही बुलिश शो कर रहा है ना ही बेयरिश शो कर रहा है। अच्छा इस पॉइंट पे एग्जैक्टली क्या हुआ सर? एक हैमर फॉर्म हुआ। क्या हुआ? हैमर फॉर्म हो, या फिर आप कह सकते हो एक डोजी फॉर्म। ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे, डोजी क्या होता है, हैमर कैंडल क्या होती है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। और जैसे ही यहाँ पे हैमर और डोजी फॉर्म हुआ उसके बाद क्या हुआ सर? मार्केट डाउनवर्ड मूवमेंट शो करना स्टार्ट कर दिया। मार्केट कैसा मूवमेंट शो करना स्टार्ट कर दिया? डाउनवर्ड, सडनली डाउनवर्ड। तो मुझे कैसे पता है या फिर ये चार्ट कैसे मैं बता पा रहा हूँ? क्योंकि मुझे पता है कि सर इस जोन में कौन सी कैंडल फॉर्म हुई है, इस कैंडल का इफेक्ट क्या होता है, इस कैंडल के बाद क्या चांसेस होते हैं, या फिर इस कैंडल का मतलब क्या है। जब डोजी कैंडल फॉर्म हो रही है या फिर इन्वर्टेड हैमर फॉर्म हो रहा है उसका साइकोलॉजिकल मीनिंग क्या है कि सर नंबर ऑफ बायर्स एट दैट मोमेंट इट्स इक्वल टू द नंबर ऑफ शेयर और माइट बी अप्रोक्सीमेटली नियर अबाउट इक्वल, और द अमाउंट ऑफ मनी विच इज entered by the people in the market is same, means जो बाई कर रहे हैं उनका अमाउंट और जो सेल कर रहे हैं उनका अमाउंट इज इट सेम, या फिर किसका ज्यादा है किसका कम है। दिस इज द साइकोलॉजिकल फैक्टर which you have to understand by understanding the candle, by understanding the candlestick pattern। और ये हम आगे पढ़ेंगे, सारी चीजें पढ़ेंगे, नो वरी मींस। अच्छा तो ये ऐसा मोमेंट शो करने लगा सर यहाँ पे बेरिश है। आपको क्या करना है, इस पॉइंट को रिकॉग्नाइज करके आप किसी दो चीजों के थ्रू आप कंफर्मेशन लोगे। क्या लोगे? दो चीजों के थ्रू आप कंफर्मेशन लोगे। जैसे इस पॉइंट का ये जोन था, यहाँ पे इसने कैंडल को मींस सपोर्ट को क्या किया सर? ब्रेक किया। क्या किया? ब्रेक किया। तो जैसे ही सपोर्ट को ब्रेक किया अब ये मूवमेंट डाउनवर्ड होने लगा। अब क्या करोगे आप? इस पॉइंट पे एंट्री लोगे, कॉल को पुट करोगे या कॉल को बाई करोगे या फिर पुट को बाई करोगे? सर ऑफ कोर्स पुट को बाई करेंगे। यहाँ पे आपने पुट को बाई किया। अच्छा बाई करने के बाद इस पॉइंट पे आपने सेल किया, तो आपने ज्यादा पॉइंट पे बाई किया या फिर ज्यादा पॉइंट पे सेल किया। अब देखिए ये जब कॉल होगा
तो ये डाउनवर्ड मूवमेंट है, तब आप क्या करोगे, सेल करोगे। आप इस पॉइंट पे अगर सेल कर दोगे मतलब आपने हायर पॉइंट पे सेल किया और लो पॉइंट पे बाई किया, तो आपके पास बच जाएगा पैसा। कैसे सर? सर अगर आपने 100 रुपीज पे किसी चीज को सेल कर दिया, मतलब मैंने एज्यूम किया कि मैं मार्केट से 10 शेयर्स या फिर 10 लॉट ले रहा हूं, तो मेरा प्राइस हो गया 100। अब उस 100 को मैंने सेल कर दिया 50 रुपीज पे, ठीक है। 100 रुपीज पे मैंने उसको खरीदा था, 50 रुपीज पे उसको बाई 100 रुपीज पे मैंने उसको सेल किया। मैंने पहले एज्यूम कर लिया कि मैं मार्केट से उधार ले रहा हूँ और मैंने 100 रुपीज पे उसको सेल कर दिया। अब सेम चीज को मुझे मार्केट को रिटर्न करना है, तो मैं सेम चीज को 50 रुपए पे बाई करके मार्केट को रिटर्न कर रहा हूँ, तो मेरा प्रॉफिट कितना हुआ, 50 रुपीज। दिस इज द साइकोलॉजी। मतलब आपके पास शेयर नहीं था, आपने क्या किया, सर सेम चीजों को आपने 100 रुपीज पे सेल किया, मतलब मेरे पास नहीं था पर मैंने सेल कर दिया। क्या कर दिया, सेल कर दिया। कितने रुपीज पे सर, 100 रुपीज में। अच्छा, हमने क्या सेल किया, एज्यूम करते हैं कि 10 शेयर आपने सेल किया, कितना, 10 शेयर। अच्छा, तो सर आपने तो सेल कर दिया लेकिन आपके पास तो शेयर था नहीं, तो अब आपको उस शेयर को परचेज भी तो करना होगा, तभी तो आप मार्केट को रिटर्न कर पाओगे। तो आपने 100 रुपए पे सेल किया और उसी चीज को अगर आप 50 रुपीज में बाई कर लेते हो, तो सर आपका बाई कॉस्ट हुआ 50 रुपीज, सेलिंग कॉस्ट था 100 रुपीज, और आपका प्रॉफिट हो गया सेलिंग माइनस बाइंग प्राइस, दैट इज इक्वल्स टू 100 माइनस 50 रुपीज, दैट इज 50 रुपीज। तो आपके पास प्रॉफिट आया 50 रुपीज का। अब समझ में आ रहा है? मतलब एक्चुअली में आपके पास शेयर था नहीं ना, आपके पास पैसा था, आपके पास नहीं, आपके पास शेयर नहीं था, केवल आपके पास पैसा था, तो उस पैसे को यूज करके आपने पहले मार्केट में सेल कर दिया। कब? जब आपको पता है कि सर हमने एक इंडिकेटर से कंफर्मेशन लिया है, इस पॉइंट के बाद मार्केट बेयरिश शो करेगा, मींस डाउनवर्ड मूवमेंट होगा। ओके, तो आपने पहले सेल कर दिया। अब आपने हायर प्राइस पे सेल किया, मान लीजिए 10,000 पे आपने सेल किया 10 शेयर, ओके एज्यूम करते हैं 10 शेयर आपने 10,000 पे सेल किया। अब उसी सेम शेयर को आपको मार्केट को रिटर्न भी करना है, तो आपने देखा कि जब कर्व नीचे जाएगा नीचे जाएगा नीचे जाएगा, और आपने उसी को 100 रुपीज में परचेज कर लिया, 10 शेयर को आपने 100 रुपीज में परचेज कर लिया, मार्केट नीचे गया तो अब आपको पैसा देना कितना है सर? केवल 10 शेयर का प्राइस, 10 शेयर का प्राइस कितना है, 100 रुपीज। आपने बेचा कितने पे था, 10,000 पे। आप एज्यूम करिए कितना प्रॉफिट है, 10,000 माइनस 100 रुपीज। तो सर ऐसा होता है क्या? नहीं, इतना ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होता, थोड़ा सा प्रॉफिट होता है। मीन्स अगर आप 1 लाख में बात करोगे तो 1 लाख में 10,000 का प्रॉफिट हो सकता है, 20,000 का प्रॉफिट हो जाता है। ऐसा नहीं कि जीरो से हीरो हो जाएंगे, दैट इज नॉट समथिंग दैट व्हाट वी लर्न इन फ्लक्चुएशन ऑफ द मार्केट। सो आपको बेसिक चीजें समझ में आ रही है, कैसे हो रहा है मार्केट, कैसे मूव कर रहा है। अच्छा, हमें क्या पढ़ना था, प्राइस एक्शन। ओके, तो ऐसा है कि सारी चीजें बताने लगते हैं क्योंकि हमें सब कुछ आता है सर, सब कुछ आता है, तो बिना बताए हम आगे बढ़ नहीं सकते, दैट इज माय प्रॉब्लम। जो भी जानते हैं आई हैव टू एक्सप्लेन इट। अच्छा, देखते हैं, प्राइस हैज रीच्ड 200। ओके, क्या कह रहा है कि सर यहाँ पे प्राइस 200 पे रीच कर डीएमए, इट्स ब्रोक द लेवल। ओके, कोई बात सर, ये कर्व था। ओके, ये यहाँ से मूवमेंट किया अपवर्ड डाउनवर्ड अपवर्ड डाउनवर्ड अपवर्ड डाउनवर्ड, ऐसे ऐसे जिगजैग। मतलब यहाँ पे कौन सा जोन है, इसको बोलते हैं साइडवेज। मतलब मार्केट ना ही अपवर्ड जा रहा है ना ही यहाँ पे डाउनवर्ड जा रहा है। अच्छा, इस पॉइंट पे सडनली क्या हुआ कि मार्केट डाउनवर्ड ट्रेंड्स हो गया, ऐसे मार्केट डाउनवर्ड ट्रेंड्स हो गया। ओके, तो क्या हुआ सर, इससे क्या हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा कि सर ऐसे ऐसे मार्केट मूव किया, फिर इस पॉइंट को, इस जोन को उसने ब्रेक किया। जिसको पता चल गया कि सर इस पॉइंट से वो डाउनवर्ड ट्रेंड शो कर रहा है, वहां पे वो एंट्री लेगा। एंट्री में क्या करेगा, सेल कर देगा और कम प्राइस में बाई कर लेगा। जब ये मार्केट इस पॉइंट पे होगा बाई कर लेगा, उसका प्रॉफिट कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। इस पे उसने क्या किया, सेल किया। इस पॉइंट पे उसने क्या किया, बाई किया। प्रॉफिट जोन कितना है, इतने गैप का, इतने पॉइंट मूवमेंट का उसका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। दैट्स इट। तो दिस इज द साइकोलॉजी। आपको उस चार्ट भी देखना है, आपको ये भी उस समय सोचना है कि एक्चुअली में लोगों के ब्रेन में क्या चल रहा है, मेरे एंट्री के बाद लोग क्या करने वाले। क्या अगर मैंने बाई किया है तो लोग बाई करेंगे तो प्राइस ऊपर जाएगा। अच्छा, साइकोलॉजी की बात करें। ओके वेट, हम साइकोलॉजी की बात,
कि एक्चुअली में हुआ क्या होगा। ठीक है, थोड़ा सा देखते हैं कि सब साइकोलॉजी कैसा होगा। सर इस पॉइंट में क्या हुआ होगा, सर कुछ लोगों ने बाई किया होगा, तो ये चार्ट यहाँ से बढ़ के यहाँ आया होगा। ठीक है, अब जैसे ही लोगों ने देखा कि सर सारे लोग बाई कर रहे हैं, मतलब प्राइस ऊपर जा रहा है, तो सभी लोग इस पॉइंट पे एंट्री लेंगे। एंट्री लेंगे मतलब बाई करेंगे, और जैसे ही बाई करेंगे इसका प्राइस क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। अब एज्यूम करते हैं कि हमने बाई किया 1000 रुपीज और मेरे साथ सभी लोगों ने क्या किया, बाई किया। अच्छा, तो सब बाई करेंगे तो सर प्राइस ऊपर जाएगा। अब ये 1000 का शेयर कितने पे चला गया सर, 10,000 पे। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं आउट हो जाऊँ, मार्केट से कट ऑफ कर लूँ। तो सर मैंने 1000 पे शेयर परचेस किया और उसी शेयर को मैंने बाई सेल किया 10,000 पे। मेरा प्रॉफिट कितना हुआ सर, 9,000। इस पॉइंट पे मैं एग्जिट ले लिया। अब क्या होगा, मार्केट फॉल होगा सर। मैं एक छोटे अमाउंट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपने प्रॉफिट बुक किया 9,000। अच्छा सर, क्या आपको कैसे पता चला कि इस पॉइंट से ऊपर जाएगा? आप किसी ने बताया कि इस पॉइंट से ही मार्केट ऊपर जाएगा? सर इस पॉइंट से मार्केट ऊपर जाएगा, या फिर आपको कैसे पता चला कि इसी पॉइंट पे जो पब्लिक है वो एंटर लेगी या फिर बाई करना स्टार्ट करेगी? दैट इज इंडिकेटेड बाई कर्व, दैट इज इंडिकेटेड बाई कैंडलस्टिक पैटर्न, दैट इज इंडिकेटेड बाई प्राइस एक्शन। यही चीजें आपको सीख, इस दिन आपको पता चल गया कि किस पॉइंट पे लोग क्या कर रहे हैं, मार्केट आपका। सर मुझे सारी चीजें नहीं सीखी, बस मुझे थोड़ा सा ब्रेन लगाना है और बस इतना प्रेडिक्ट करना है कि हाँ जब मैं बाई कर रहा हूँ उस समय लोग क्या कर रहे हैं। अगर मैं बाई कर रहा हूँ उसी समय लोग बाई करना स्टार्ट कर दिए, उसका प्राइस ऊपर जाएगा, मैं तब सेल कर दूँ, मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। अच्छा, मेरे को पता है कि अभी मार्केट में लोग जो हैं वो एंटर कर चुके हैं बहुत सारे पैसे के साथ और मार्केट टॉप पोजीशन पे है। इस पॉइंट से लोग एग्जिट लेंगे, तो जैसे एग्जिट लेंगे मार्केट कैसा होगा, डाउनफॉल होगा। तो इस पॉइंट में मैं सेल कर दूंगा और नीचे जाके बाई कर लूंगा, मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको सीखनी है। ओके, तो अच्छा और क्या है सर, देखिए यहाँ पे भी एक जोन फॉर्म हुआ, यहाँ पे तो डाउनवर्ड फॉर्म हो गया, यहाँ पे भी एक जोन फॉर्म हुआ। इस पॉइंट पे उसने फिर से इस जोन को क्या किया है, ब्रेक किया। क्या किया, ब्रेक किया। और जैसे ही ब्रेक किया कोई बंदा यहाँ पे एंट्री लेगा। एंट्री कहाँ होगी सर, यहाँ पे होगी। अच्छा, तो मार्केट इतना फाउंड हुआ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेल कर देगा, नहीं यहाँ पे बाई कर लेगा। इस पॉइंट पे क्या करेगा, सेल करेगा और इस पॉइंट पे बाई कर लेगा। उसने सेल कितने पे किया, 1000 पे एज्यूम करते हैं, बाई कितने पे किया, 100 पे। तो सेम शेयर को उसने 1000 पे बेच दिया। अच्छा, सेम शेयर को उसने 100 रुपीज में उसने बाई कर लिया, तो उसका डिफरेंस कितना हुआ सर, 900। सो दिस इज द प्रॉफिट। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? देखो, ज्यादा ब्रेन नहीं यूज करना ट्रेडिंग के लिए। ट्रेडिंग के लिए थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, थोड़ा सा साइकोलॉजिकल माइंडसेट होना चाहिए। ऑब्वियसली आपको साइकोलॉजी समझना हो। मैं अगर पर्सनली अपने बारे में बताऊं तो मैंने बहुत सारी साइकोलॉजी की बुक पढ़ी है बिना उस बुक का नाम देखे, क्योंकि नाम देखने से क्या होता है कि आपको लगता है कि मैंने इतनी बुक पढ़ ली। नहीं, ऐसा नहीं, मैंने सीखने के लिए पढ़ा, बहुत सारी बुक पढ़ी कि एक्चुअली में मुझे अब मैं मार्केट में एंटर हो रहा हूँ उस समय पीपल्स का साइकोलॉजी क्या है, या फिर लोगों के साइकोलॉजी के अनुसार मार्केट चल रहा है कि सर लोगों के साइकोलॉजी में आ रहा है कि अभी मेरे को बाई करना चाहिए, लोग ने पैसा फेंका, उसके बाद बाई करना स्टार्ट कर दिया, अब उस पॉइंट से मार्केट ऊपर जाएगा, ये मेरे को समझ। और ये समझने के बाद मुझे एंट्री ले, और ये मुझे साइकोलॉजी से समझना, प्राइस एक्शन के कैंडल पैटर्न से देख के समझना, इंडिकेटर से श्योर कर, मतलब जो भी मेरे पास टेक्निकल टर्म्स है आई कैन यूज दैट थिंग टू आइडेंटिफाई कि जो ये लोग वो उस समय क्या कर रहे हैं। समझ में? अच्छा, नेक्स्ट, इंडिकेटर्स इग्नोर ह्यूमन साइकोलॉजी, जिसकी मैं आपको बात कर रहा हूँ। सर जो इंडिकेटर होता है ना, जो टेक्निकल इंडिकेटर्स होता है वो साइकोलॉजी नहीं समझता। उन्हें क्या पता है, वो बस प्राइस एक्शन को देख के अपना अपवर्ड ट्रेंड, डाउनवर्ड ट्रेंड और साइडवर्ड ट्रेंड को शो करता है। अच्छा, जो कैंडल फॉर्म होता है वो साइकोलॉजी थोड़ी समझता है, उसको थोड़ी पता है कि मेरे ब्रेन में क्या चल रहा है। उसको बस इतना पता है कि मैं कितना पैसा एंट्री कर रहा हूँ। मतलब उसको जो भी इंडिकेटर्स हैं, कैंडल हैं, उनको क्या पता है कि मैं मार्केट में मनी कितना एंटर कर रहा हूँ। जो भी इंडिकेटर्स हैं, जो भी चार्ट पैटर्न फॉर्म हो रहा है, या फिर जो भी क्या बोल सकते हैं, डोजी हो गया,
हैमर हो गया, इन सबको क्या पता है? कुछ भी नहीं पता। इनको बस इतना पता है कि कोई भी इंसान कि लोग मार्केट में मनी कितना सप्लाई कर रहे हैं, इस मनी के बिहाफ पे ये कैंडल फॉर्म हो रही है, और इस कैंडल के बिहाफ पे क्या फॉर्म हो रहा है? इंडिकेटर्स शो हो रहे हैं। तो उन्हें साइकोलॉजी नहीं आती, ह्यूमन साइकोलॉजी नहीं आती। ह्यूमन साइकोलॉजी किसको आनी चाहिए? आपको। समझ में अच्छा, तो इससे आपको क्या प्रॉफिट हो? बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो, आप सोच भी नहीं सकते कि कितना प्रॉफिट होगा। कैसे सर? व्हाट हैपन इन द पास्ट, जो पास्ट में हुआ है विल हैपन अगेन। जो चीजें पास्ट में हुई है मार्केट में, मोस्ट प्रोबेबली चांस होता है कि सेम चीजें दोबारा हो। कैसे? देखिए, ये चार्ट पैटर्न था, ऐसे ऐसे मूवमेंट किया, यहाँ पे थोड़ा अपवर्ड ट्रेंड किया, इस पॉइंट से उसने ब्रेक किया और सडनली डाउनफॉल हुआ। ओके, इस जोन में आने के बाद लोग बाई करना स्टार्ट करते हैं। फिर ये कैंडल थोड़ा थोड़ा ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, ऊपर नीचे आया। जब सेम जोन में आया, सेम लेवल के जोन में आया, फिर यहाँ पे बायर्स एंट्री हुई। क्यों? क्योंकि बायर्स ऑलरेडी सेम जोन पे जाके पहले भी बाई कर चुके हैं। तो सेम जोन पे जाने के बाद मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि फिर से बाई करेंगे और फिर से ये कैंडल अपवर्ड मूवमेंट। तो जो चीजें पास्ट में हो चुकी, सेम चीजें फ्यूचर में भी। दिस इज मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। जो चीजें पास्ट में हो चुकी है, मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि सेम चीजें फ्यूचर में भी हो। क्योंकि जो इंडिकेटर्स रीड करता है ना, वो पास्ट को देख के रीड करता है कि सर पास्ट में क्या हुआ, सेम चीजें के अकॉर्डिंग मेरे को मूव करना है, मेरे को उतने अमाउंट्स में मनी इनपुट करना है मार्केट में एट द सेम पॉइंट, एट द सेम प्राइस एक्शन लेवल। सो दिस इज समथिंग कि थोड़ा सा इंसान कहता है कि मुझे पास्ट को एनालिसिस करना चाहिए। नहीं तो पास्ट की क्या जरूरत है? समझ में आ? तो जो पास्ट में होता है वो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि फ्यूचर में भी होगा। दिस इज द मार्केट ऑफ साइकोलॉजी। ओके, नेक्स्ट, इंडिकेटर्स लैगिंग इन नेचर। देखिए, इंडिकेटर्स लैग करते हैं सर, ऐसा हम नहीं कह सकता कि यू हैव टू 110% डिपेंड ऑन इंडिकेटर्स, ऐसा कोई इंसान नहीं कह सकता। तो इंडिकेटर्स लैग करते हैं। जैसे देखिए, इस पॉइंट पे दोनों इंडिकेटर्स, दो इंडिकेटर्स यूज हुए हैं, ये दो इस पॉइंट पे क्या है? क्लोज है। दोनों इंडिकेटर क्या है? क्लोज है। तो ये चार्ट कैसा गया सर? अपवर्ड मूवमेंट किया। ओके, इस पॉइंट पे भी क्लोज है। क्या है? क्लोज है, बट देयर इज नो अपवर्ड मोमेंट हियर। मतलब दो इंडिकेटर्स को मैंने यूज किया, एक पॉइंट पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं या फिर एक दूसरे के पास है, बट फ्रॉम दैट पॉइंट मार्केट कैसा गया? अपवर्ड मूवमेंट, मतलब अप ट्रेंड शो किया। बट नेक्स्ट टाइम जब दोनों कर्व आपस में इंटरसेक्ट हो रहे हैं या फिर आसपास है, उस पॉइंट पे मार्केट अपवर्ड ट्रेंड नहीं शो। मीन्स इंडिकेटर्स भी कभी कभी लैग करते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि आपको मास्टर्ड केवल एक चीज को करना है, बट before executing your trade you must have to confirm it by 2 or 3 things. आपको चार्ट पैटर्न को भी देखना पड़ेगा, इंडिकेटर्स को भी देखना पड़ेगा, इंटरसेक्शन को भी देखना पड़ेगा, प्राइस एक्शन को भी देखना पड़ेगा। देखना सबको है, लेकिन करना किसी एक को। दिस इज द साइकोलॉजी। अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ? अगेन नेक्स्ट टाइम जैसे ही इंटरसेक्ट हुआ, मार्केट कैसा चला गया? ऊपर चला गया। अब जिस इंसान ने इस पॉइंट पे इंटरसेक्शन को देख के सोचा होगा कि सर यहाँ पे भी तो इंटरसेक्शन हुआ था, तो मार्केट अप ट्रेंड शो किया। यहाँ पे इंटरसेक्शन हुआ तो मार्केट अप ट्रेंड शो किया? नहीं सर, अगर जो यहाँ पे एंट्री किया होगा उसको इतना दूर वेट करना पड़े। समझ में आया? यहाँ पे इंटरसेक्शन हुआ तो अपवर्ड मूवमेंट कर दिया। तो दिस इज द साइकोलॉजी। अच्छा, नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये हम बात करेंगे कि EMA क्या होता है, ये 10, 50, ये सारी चीजें टेक्निकल चीजें हम बहुत ही आराम से बैठ के बात करेंगे। ओके, प्राइस एक्शन इन ट्रेडिंग, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसको हमें पढ़ना है। प्राइस एक्शन इन ट्रेडिंग। ओके, ये है रेजिस्टेंस लाइन। अच्छा, एंट्री कहाँ होगा? दैट इज समथिंग। देखो ये, अच्छा कैसे कर रहा हूँ? बस चार्ट को देख रहा हूँ और लाइन ड्रॉ करना। लाइन ड्रॉ करना सबको आता है। देखो, मैंने इस चार्ट पे ऐसे 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 मूवमेंट देखा, ऐसे 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 मूवमेंट देखा। अब मेरे को क्या समझ में आया कि सर इस जोन में और इस जोन में, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक हाईएस्ट पॉइंट क्या है? ये है। अच्छा, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक हाईएस्ट जोन क्या है? ये है।
अच्छा, इस पॉइंट से इस पॉइंट में हाईएस्ट जोन क्या है ये, तो हमने हायर पॉइंट को ज्वाइन कर लिया। क्या कर लिया, ये है हायर पॉइंट, ये है हायर पॉइंट, ये है हायर पॉइंट, हमने इसको एक लाइन के थ्रू ज्वाइन कर लिया। समझ में आया, इसको हमने एक लाइन के थ्रू ज्वाइन कर लिया। अब नीचे वाले को भी, लोअर पॉइंट को हमने ज्वाइन कर लिया। अब देखो, अब ये क्या बन रहा है, एक एंगल पे फॉर्म हो रहा है ऐसे। जिस दिन इसको कर्व ने ब्रेक किया, जिस दिन इसको कर्व ने ब्रेक किया, ये बन गया मेरा एंट्री पॉइंट। मुझे पता है कि इस ट्रेंड लाइन को इस कर्व ने ब्रेक कर दिया, यहाँ से कर्व अब चार्ट कैसा जाएगा, अपवर्ड मूवमेंट करेगा। लेकिन मैं ये केवल एक चीज को देख के नहीं बता। अच्छा, इसके पीछे मेरा और भी कुछ साइकोलॉजी होगा। और क्या हो सकता है, और भी 2-3 चीजों से मैं कंफर्म करूंगा कैंडलस्टिक पैटर्न से। कैसे सर, देखिए ऐसे कि इस पॉइंट पे क्या फॉर्म हुआ है सर, डोजी, समझ में, इन्वर्टेड हैमर फॉर्म हुआ है। अच्छा, इसका साइकोलॉजी क्या है मैं आपको बता। सर अगर ये बॉडी इधर फॉर्म होती, ये फॉर्म होती, मतलब बायर्स एग्रेसिव, मतलब इसको ऊपर ले जाने की कोशिश कर। इस पॉइंट पे फॉर्म हुआ है, मतलब इसको नीचे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम आगे पढ़ेंगे कि whenever there is an inverted hammer form, there is most probably कि ये मार्केट डाउनवर्ड जाए, मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि मार्केट डाउनवर्ड जाएगा। बट ये तो एक कैंडल को आपने देखा, उसके जस्ट बिफोर क्या हुआ, उसके जस्ट बिफोर हुआ है दिस इज द मोस्ट डेंजरस कैंडल, जिस पॉइंट पे बायर्स और सेलर्स दोनों सेम अमाउंट से मार्केट में एंटर। अच्छा, अब मैं क्या बोलूँ सर, अगर इस पॉइंट पे बायर्स और सेलर्स दोनों सेम अमाउंट से एंटर हो रहे हैं और नेक्स्ट कैंडल हैमर फॉर्म हो रही है, सो दिस इज द बाय कंबाइनिंग दिस टू कैंडल, बाय कंबाइनिंग दिस टू कैंडल मैं ये कहूँगा कि हाईली चांस की मार्केट बुलिश है। ये दो चीजों को देख के मैंने बताया, मोस्ट प्रोबेबली मैं पिछले थर्ड कैंडल को भी देख के बता सकता। अब समझ में आया क्यों मुझे एक कैंडल को देख के कोई भी चीज प्रेडिक्ट नहीं करना, क्यों मुझे इंडिकेटर्स और कैंडल को यूज करना पड़ रहा है। ओके, तो ये सिंपल सी साइकोलॉजी थी। अब क्या है, इंडिकेटर्स ओवर कॉम्प्लिकेटेड ट्रेडिंग। देखो, इंडिकेटर्स आप जितना ज्यादा यूज करोगे उतना ज्यादा कंफ्यूज रहोगे कि सर जो भी मैंने इंडिकेटर्स यूज किया उसका इंटरप्रेट करना। अच्छा, एक्चुअली में करना क्या होगा, इंडिकेटर है आपने यूज किया, उसका इंटरप्रिटेशन आना चाहिए कि सर दो कर्व अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इस पॉइंट से क्या होता है। ये आपको कैसे पता चलेगा, सेम कर्व को आप पास्ट में देखो कि किसी पॉइंट पे वो क्या पहले इंटरसेक्ट किए थे तो कैसा मूवमेंट था, अपवर्ड ट्रेंड था, डाउनवर्ड ट्रेंड था, या फिर मार्केट साइडवेज था। आपने पीछे देख लिया कि हाँ इस पॉइंट पे इन्होंने इंटरसेक्ट किया है और उस पॉइंट पे इंटरसेक्शन के बाद कर्व अपवर्ड मूवमेंट किया, आपने ये देख लिया। फिर फ्यूचर में जब कभी वो इंटरसेक्ट करेंगे आपको पता होगा ये अपवर्ड ट्रेंड शो करेगा, मोस्ट प्रोबेबली शो करे, ये जरूरी नहीं कहीं, क्योंकि आपने अभी देखा कि इंडिकेटर्स आर नॉट 100% गिव एश्योरिटी ऑफ मोमेंट ऑफ द कर्व। You need to confirm it, assure it by using 2 or 3 techniques like psychological things, like candlestick pattern, like price action. Okay, तो सर प्राइस एक्शन वर्सेस इंडिकेटर, हमें किस चीज को लेके चलना चाहिए, हमें दोनों को लेके चलना। जब प्राइस एक्शन की मूवमेंट होगा हम प्राइस एक्शन को रीड करेंगे, जब इंडिकेटर्स का समय होगा इंडिकेटर्स को यूज करेंगे। ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आप चार्ट को कितनी इजिली प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं और किस चीज के थ्रू प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं। सब टाइम्स इंडिकेटर्स बहुत ही इजिली बता देते हैं, इंटरसेक्शन हुआ हमें पता चल गया कि सर पहले इंटरसेक्शन हुआ तो वहां से ट्रेंड क्या हो गया, अपवर्ड हो गया, तो अगेन इंटरसेक्शन हुआ दो कर्व का, अगेन अपवर्ड हो जाएगा। अच्छा, कभी कभी हमें कैंडलस्टिक पैटर्न बहुत अच्छे से बताती है कि सर डोजी फॉर्म हुआ, मार्केट चेंज हो जाएगा, रिवर्सल हो जाएगा, 100% रिवर्सल हो जाएगा। अच्छा, और देखिए ये रहा प्राइस और ये रहा प्राइस एक्शन ट्रेड। मैं बैठा हूं और मैं इस कैंडल को देख के प्रेडिक्ट करूं, सेम चीज, ये रहा प्राइस, ये रहा इंडिकेटर और ये रहा मैं। अब मुझे प्राइस को भी इंटरप्रेट करना है और इंडिकेटर को भी इंटरप्रेट करना। अब मुझे पहले क्या था,
पहले केवल प्राइस को मुझे इंटरप्रेट करना था कि जो प्राइस था, प्राइस एक्शन था, उसका मीनिंग क्या है। अब हमें क्या करना है, प्राइस एक्शन को भी इंटरप्रेट करना है और इंडिकेटर को। सो दिस इज बिकम हाईली कॉम्प्लेक्स, हाईली कॉम्प्लेक्स। इसीलिए कह रहा था कि आप जितने कम चीजों का यूज करो उतना बेनिफिशियल है, बट फॉर कंफर्मेशन यू मस्ट हैव टू यूज 2 और 3 मैं ये रिकमेंड करूंगा, क्योंकि मैं 2 और 3 चीजों का यूज करता हूँ 100%। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि कभी कभी सिंगल चीज़ों पे अगर आप डिपेंडेंट हो जाओगे ना, दैट्स विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आपका पैसा चला जाएगा, 100% चला जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्या पढ़ना, क्विक इंट्रो ऑफ प्राइस एक्शन ट्रेडिंग। तो सर प्राइस एक्शन ट्रेडिंग क्या होता है? प्राइस फ्लक्चुएशन ऑफ स्टॉक मार्केट इंडस्ट्री। मार्केट में जो प्राइस का फ्लक्चुएशन होता है, दैट इज प्राइस एक्शन, दैट इज प्राइस एक्शन मोमेंट। प्राइस एक्शन क्या होता है सर? प्राइस का फ्लक्चुएशन। समझ में आ गया सर, कैसे? देख, इस पॉइंट पे सर प्राइस क्या है? कम है, इस पॉइंट पे प्राइस ज्यादा है, इस पॉइंट पे ज्यादा है, इस पॉइंट पे क्या हो रहा है सर? वेट वेट वेट, इस पॉइंट पे क्या फॉर्म हुआ है सर? इन्वर्टेड हैमर। तो सर ये थोड़ा सा ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया। इस पॉइंट पे क्या हुआ है सर? बियरिश का इन्वर्टेड हैमर। अगेन ये मेरा क्या था? एक जोन था। जैसे यहाँ पे ब्रेक हुआ, क्या हुआ? ब्रेक हुआ, मार्केट कैसा मूव किया? अपवर्ड। इस पॉइंट पे क्या हुआ? इस पॉइंट पे कैंडल ऐसे फॉर्म, मींस बायर्स और सेलर्स दोनों का इंटेंशन या फिर अमाउंट विच दे एंटर्ड इन द मार्केट, दोनों का सेम। अच्छा, उसके बाद अगेन कैसा फॉर्मेशन हुआ सर? एक रेड कैंडल फॉर्म हुई है, दो शो कर रही है कि बियरिश मार्केट होने वाला, मतलब एग्रेसिव सेलिंग होने वाला। अच्छा, उसके बाद सेकेंड और थर्ड कैंडल भी क्या फॉर्म कर रही है? बियरिश फॉर्म कर रही है। तो इस पॉइंट पे मैं कंफर्म हो जाऊंगा कि मार्केट कैसा होगा? बियरिश मार्केट। अच्छा, इसको रीड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? प्राइस एक्शन को देखना पड़ेगा। प्राइस एक्शन क्या है सर? फ्लक्चुएशन ऑफ प्राइस। फ्लक्चुएशन ऑफ प्राइस मतलब कैंडल अगर नीचे है तो उसका प्राइस कम है, कैंडल अगर ऊपर है तो उसका प्राइस ज्यादा। तो मैंने क्या रीड किया? कैंडल यूज किया, पर मैं बोल क्या रहा हूँ कि प्राइस एक्शन रीच कर रहा हूँ। समझ में? अरे भाई, प्राइस एक्शन को भी तो किसी चीज से हम देखते होंगे ना, किससे? कैंडल से। कैंडल अगर ऊपर जा रही है तो उसका प्राइस बढ़ गया सर, कैंडल नीचे जा रही है तो उसका प्राइस घट गया। आपको समझ में आ रहा है आपको कैसे चीजें रीड करनी? तो इसमें प्राइस एक्शन क्या है देख सर, प्राइस एक्स इस पॉइंट पे आपको रीड करना होगा, इस पॉइंट पे रीड कर, जोन में रीड करते हैं। किस में रीड करते हैं? जोन में रीड करते हैं, इस पॉइंट पे और इस पे। ये मेरे 5 जोन है, यहाँ पे भी कैंडल फॉर्म हो रही होगी तो ये एक जोन बना रहा होगा, ये एक जोन बना रहा है, ये एक जोन बना रहा है, ये एक जोन बना रहा है, यहाँ पे भी थोड़ा आगे जाएंगे तो जोन बना। तो ऐसे आपको रीड करना है। अच्छा, व्हाट इज द प्राइस एक्शन ट्रेडिंग? Price action trading is a trading concept in which the trader read the chart, make subjective trading decision based on the price movement। क्या कहता है कि प्राइस एक्शन ट्रेडिंग क्या होता है कि अगर कोई ट्रेडर है तो वो क्या रीड करेगा सर? चार्ट को रीड करेगा, फिर मार्केट के सब्जेक्टिव को रीड करेगा। सब्जेक्टिव इन द सेंस कि और भी बहुत सारे बिहेवियर हैं, उससे वो क्या लेगा? डिसीजन लेगा। डिसीजन किसके बेसिस पे लेगा सर? प्राइस मूवमेंट पे। प्राइस मूवमेंट आपको कैसे पता चलेगा? चार्ट एनालिसिस से। तो ये सारी चीजें इंटरलिंक्ड। आप नहीं कह सकते कि मैं केवल प्राइस एक्शन देख के ट्रेड करूंगा, आप ये नहीं कह सकते कि मैं केवल कैंडल पैटर्न देख के ट्रेड करूंगा। यू मस्ट हैव टू रीड ईच एंड एवरीथिंग। प्राइस एंड वॉल्यूम, दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग, और हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। प्राइस और वॉल्यूम, इनमें बहुत ज्यादा रिलेशन, गहरा रिलेशन होता है वॉल्यूम और प्राइस में। कैसे? मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ कि सर एज्यूम करिए कि अभी मार्केट में बहुत सारे लोग एंटर करने वाले हैं, 1 ट्रिलियन लोग अचानक मार्केट में एंटर करते हैं। अगर वो 10-10 रुपए लेके एंटर करेंगे तो 10 ट्रिलियन हो जाए। हुआ क्या कि सर बहुत ज्यादा वॉल्यूम, लेकिन प्राइस क्या है? 10 रुपये। ठीक है, मार्केट क्या होगा? बुलिश हो जाए। मैं कहूँ कि 50 लोग एंटर कर रहे हैं और सबके पास 10-10 हज़ार रुपए है, प्राइस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम कम है। वॉल्यूम कम है तो प्राइस कम है सर। नहीं समझ में आया? जैसे ही वॉल्यूम कम होगा उनके पास अमाउंट भी कम होगा सर, कम अमाउंट से एंटर करेंगे, सो दे डोंट हैव द कैपेबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द मार्केट्स
to lead it to move in upward direction. लेकिन जैसे वॉल्यूम ज़्यादा होगा, उनके पास पैसा कम भी होगा, तभी मार्केट अपवर्ड ट्रेंड में जाएगा. सो देयर इज हाईली रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड वॉल्यूम. और इसको भी बोलते हैं, मीन्स बहुत लोग प्राइस और वॉल्यूम को देख के ट्रेड करते हैं, वॉल्यूम एक्शन को देख के ही ट्रेड करते हैं, क्योंकि उनको साइकोलॉजिकल. मैं भी ट्रेड करता हूँ कभी कभी, नॉट ऑलवेज, कभी कभी ट्रेड करता हूँ. तो दिस इज आल्सो बेस्ट थिंग. हम इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि प्राइस और वॉल्यूम को देख के कैसे ट्रेड करते हैं. ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, एंड आई थिंक कि आप धीरे धीरे ट्रेड को सीख जाओ फॉर योर फ्यूचर. और मैं आपको पर्सनली बताऊं, दिस इज नॉट समथिंग कि आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो. दिस इज समथिंग कि आप सीख रहे हो. दिस इज मोस्ट डेंजरस स्किल इन द वर्ल्ड, क्योंकि पूरी इकोनॉमी स्टॉक मार्केट से चल रही है, पूरी इकोनॉमी ट्रेडिंग से चल रही है, पूरी कंपनी कहाँ लिस्टेड हुई है, स्टॉक मार्केट. सो वंस यू मास्टर्ड दिस थिंग, सारी चीजें कुछ भी नहीं आपके साथ. आई पर्सनली बिलीव इन दिस. ओके, so this is all about for today. So thank you so much.